Good morning, students. Myself, Professor Kavita Kamerikar from Sagar Institute of Science and Technology, Bhopal. Today we will discuss the first topic of unit number 2, that is the CRO, different parts of CRO and its block diagram. This is the lecture plan 11 of the subject EMI. CRO or the cathode ray oscilloscope plays an important role in electronic circuit. The cathode ray oscilloscope is an electronic test instrument. It is used to obtain waveforms when the different input signals are given. The oscilloscope observes the changes in the electrical signal over time. Thus, by using the CRO, the voltage and time described in a shape and it is continuously graphed on a scale. With the help of the CRO, we can analyze some properties of the signals like amplitude, frequencies, etc. Introduction of the CRO. The cathode ray oscilloscope or the CRO is a multi-purpose display instrument used for the observation, measurement and analysis of waveforms by plotting the amplitude along y-axis and time period along x-axis. यहाँ पे हम जो सिग्नल अप्लाई करेंगे उसका एम्पलीट्यूड हम कैसे मेजर करेंगे along y-axis और टाइम मेजरमेंट किसके along होगा x-axis के along. CRO is generally an XY plotter. On a single screen, it can display different signals applied to different channels. It can measure amplitude, it can measure frequency and phase shift of various signals. Many physical quantities like temperature, pressure, etc. can be converted into electrical signal by the use of transducer and the signals can be displayed on the CRO. A moving luminous spot over the screen displays the signal. CROs are used to study waveforms and other time varying phenomena from very low to very high frequency. So, the CRO is very useful instrument in the electronics. The central unit of the oscilloscope is the cathode ray tube. In short, it is called as CRT. And the remaining part of the CRO consists of the circuitry required to operate the cathode ray tube. Next is block diagram of cathode ray oscilloscope. Basically, the block diagram of CRO can be divided into 4 sections which are display, vertical controllers, horizontal controllers and triggers. As we can see from the diagram, there are number of components used here, that is vertical amplifier, delay line, voltage supply, trigger circuit, time based generator, horizontal amplifier, like etc. So, most of the oscilloscope are used to analyze the waveform by plotting the amplitude along the x-axis and time along the y-axis and time along the x-axis. We will discuss the block diagram of CRO in detail. The basic component that we use here is power supply, vertical amplifier, delay line, trigger circuit, horizontal amplifier, CRT and time based generator. We will discuss it one by one in detail. First is the power supply. As we can see from the figure that we are using here two types of power supply, HV supply and LV supply. HV is the high voltage supply and LV is the low voltage supply. HV supply we are connect with the HV supply को हमने कहाँ दिया हुआ है, टू द CRT. जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, हाई वोल्टेज सप्लाई इज कनेक्टेड टू द CRT and low voltage supply is connected to the all circuit. Because CRT requires very high voltage for pre-accelerating and accelerating anode. अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसको. So this require very high voltage, whereas the other component of the circuit required low voltage.
like heater, control grid, focusing anode and the other circuit of CRO. So the function of power supply is to provide the voltage required by the circuitry as it is. For CRT high voltage and for other part of the circuit low voltage. Next component is the vertical amplifier. The signal under the analysis is to be applied to vertical deflection plate through the vertical amplifier. जब हमें सिग्नल्स को मेजर करना है, जो भी इनपुट सिग्नल रहेगा वो CRO की स्क्रीन पे जाने से पहले कहाँ से पास होगा? वर्टिकल एम्पलीफायर से, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी टू एम्पलीफाई द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल. तो इसको ये वर्टिकली एम्पलीफाई करेगा और उसके बाद ये कहाँ जाएगा? दिस विल बी गो टू द वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स. सो द वर्किंग ऑफ vertical amplifier is to amplify the amplitude of input signal. The next is delay line. What is the use of delay line? जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, delay line कहाँ लगा हुआ है? वर्टिकल एम्पलीफायर के बाद हमने क्या यूज़ किया है? डिले लाइन. अब यहाँ पर सिग्नल्स जो है वो दो तरीके से यहाँ पे स्क्रीन पे पहुँचेंगे, एक तो वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली. जैसे कि आप देख सकते हैं एक वर्टिकल एम्पलीफायर लगा हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर लगा हुआ है. तो जब दोनों के सिग्नल यहाँ पर सेम टाइम पर पहुँचेंगे तभी हमें आउटपुट सही मिलेगा. अगर वहाँ पर कोई सिग्नल जल्दी आ रहा है या कोई सिग्नल देर से आ रहा है, देन यू विल गेट द डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म. सो टू सिंक्रोनाइज बिटवीन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिग्नल वी हैव टू यूज़ डिले लाइन हियर. बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि वर्टिकल सिग्नल्स अराइव्स मच अर्ली कंपेयर टू द हॉरिजॉन्टल सिग्नल्स. फॉर दिस रीज़न the vertical signal at the output of vertical amplifier should be delayed with the help of delay line. अब जैसे यहाँ पर वर्टिकल एम्पलीफायर का सिग्नल अगर जल्दी पहुँच जाएगा तो हमें आउटपुट सही नहीं मिलेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को कहाँ से इनपुट मिल रहा है? फ्रॉम द आउटपुट ऑफ वर्टिकल एम्पलीफायर. सो टू maintain the synchronization between the vertical and horizontal amplifier we have to use delay line, जिससे कि दोनों सिग्नल्स आपस में सिंक्रोनाइज हो सके. So we have to use delay of 200 nanosecond. कितना डिले लेते हैं यहाँ पर हम? 200 nanosecond का. So the function of delay line is to produce synchronization between the vertical amplifier and the horizontal amplifier signals. The next is trigger circuit. This is triggered by the portion of vertical amplifier output. ट्रिगर सर्किट को इनपुट कहाँ से मिल रहा है? फ्रॉम द वर्टिकल एम्पलीफायर. दिस सर्किट इनिशिएट द टाइम बेस्ड जनरेटर. ट्रिगर सर्किट का आउटपुट कहाँ जा रहा है? टाइम बेस्ड जनरेटर में, और टाइम बेस्ड जनरेटर का आउटपुट कहाँ जाएगा? हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में. सो बेसिकली यहाँ पे ट्रिगर सर्किट और टाइम बेस्ड जनरेटर का काम क्या है? टू सिंक्रोनाइज द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन विद द वर्टिकल डिफ्लेक्शन. सो द ट्रिगर सर्किट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द इनपुट सिग्नल टू द हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर. और इसको कहाँ से मिलेगा इनपुट? वर्टिकल एम्पलीफायर से. सो ट्रिगर सर्किट इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन विद द वर्टिकल डिफ्लेक्शन. नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर. जैसा कि हम देख चुके हैं, ट्रिगर सर्किट से जो भी सिग्नल आएगा वो कहाँ जाएगा? टाइम बेस्ड जनरेटर में. लेकिन टाइम बेस्ड जनरेटर जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम रहती है, तो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है? हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर. सो टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल फ्रॉम टाइम बेस्ड जनरेटर विल बी इंक्रीज बाय वी हैव टू यूज़ हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर. तो पहले जो भी सिग्नल टाइम बेस्ड जनरेटर से आएगा वो कहाँ पास होगा? हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से, और उसके बाद वो कहाँ जाएगा? हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पर. So horizontal amplifier is used to enhance the strength of the output of time based generator. टाइम बेस्ड जनरेटर से जो हमें आउटपुट मिलता है वो होता है सॉ टूथ वोल्टेज, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द CRO इज कैथोड रे ट्यूब और द CRT. Here we can see the diagram.
CRT में क्या क्या है? द इलेक्ट्रॉन गन और द इलेक्ट्रॉन एमीटर, जहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, देन डिफ्लेक्टिंग सिस्टम, देन फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो जो इसका बेसिक पार्ट है वो हमें एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लगा हुआ है? स्टार्टिंग में गन के लिए क्या लगा हुआ है यहाँ पे, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे? कैथोड, और उसके साथ हीटर लगा हुआ है। तो हीटर का काम क्या रहेगा? कैथोड को हीट करना। जैसे ही कैथोड का टेम्परेचर बढ़ेगा, द इलेक्ट्रॉन विल बी स्टार्ट टू एमिट फ्रॉम द कैथोड। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुँच रहे हैं? ग्रिड पर। दिस इज द ग्रिड। नेक्स्ट पार्ट क्या है? ग्रिड। कंट्रोल ग्रिड इज मेड अप ऑफ निकिल विच कंट्रोल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी। कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ जनरेट होना है, किस इंटेंसिटी से जनरेट होना है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ ग्रिड। तो यहाँ पर कैथोड हीटअप हुआ, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट हुए, एंड द ग्रिड विल कंट्रोल द इंटेंसिटी एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द कैथोड इज कोटेड विद अ लेयर ऑफ बेरियम ऑक्साइड। अब ग्रिड के बाद क्या लगा हुआ है? ग्रिड के बाद लगा हुआ है प्री एक्सेलरेटिंग एनोड। इसका काम क्या रहेगा? टू प्रोवाइड द प्री एक्सेलरेशन टू द इलेक्ट्रॉन्स जो कि ग्रिड से निकल रहे हैं। ऐसा ज़रूरी क्यों? क्योंकि अभी इनिशियली इनकी स्पीड बहुत कम है, तो यहाँ पे एक प्री एक्सेलरेशन हमें देना पड़ेगा। और यहाँ पर जैसे हम एक्सेलरेशन देंगे, उसके बाद नेक्स्ट एनोड क्या रहेगा? फोकसिंग एनोड। फोकसिंग एनोड का काम क्या रहेगा? टू फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर फोकसिंग एनोड नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो डाइवर्ट होती रहेगी और हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट नहीं मिलेगा। देन आफ्टर फोकसिंग एनोड देयर इज एक्सेलरेटिंग एनोड। एक बार हम एक्सेलरेशन दे चुके हैं, लेकिन उसको आगे और स्पीड अप करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक्सेलरेटिंग एनोड। तो बेसिकली यहाँ पे 3 एनोड्स यूज़ होंगे। एक होगा प्री एक्सेलरेटिंग, देन फोकसिंग, एंड देन अगेन एक्सेलरेटिंग। तो इन सभी के वोल्टेजेस भी अलग अलग रहेंगे। जो प्री एक्सेलरेटिंग और एक्सेलरेटिंग एनोड रहेगा, उसका जो वोल्टेज रहेगा, इट इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ 1500 वोल्ट्स। The pre-accelerating and accelerating anode will be connected to a positive potential of 1500 volts, और जो focusing anode रहेगा, it is connected to a potential of 500 volts। तो इस तरीके से सभी को सप्लाई अलग अलग रहेगी। और ये जो हम बात कर रहे थे अभी पावर सप्लाई की, तो यहीं पर ज़रूरत पड़ती है हमें ज़्यादा पावर देने की, टू प्री एक्सेलरेट एंड एक्सेलरेशन ऑफ एनोड। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आगे पास होंगे उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुँचेंगे? दैट विल बी रीच एट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट साइमल्टेनियसली। और उसी के साथ यहाँ पे ये लगी हुई है, दिस इज़ द फॉस्फोरस स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन जिसको हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे आके हमें वेवफॉर्म, इसको हम चेक कर सकते हैं, यानी कि हमें वेवफॉर्म यहाँ पे दिखेगा। सो इट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ CRT। एक बार इसको मैं और रिवाइज कर रही हूँ। सबसे पहले कैथोड को हीटअप किया। कैथोड किससे मिलकर बना हुआ है? ए लेयर ऑफ बेरियम ऑक्साइड। उसके बाद कैथोड के हीटअप होने से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए। इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होने के बाद वो कहाँ पहुँचेंगे? ग्रिड में। अब ग्रिड का काम क्या रहेगा? टू कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद फर्स्ट यहाँ पे क्या लगा हुआ है? आफ्टर द ग्रिड देयर इज़ अ प्री एक्सेलरेटिंग एनोड। इसका काम रहेगा टू प्रोवाइड द प्री एक्सेलरेशन टू द इलेक्ट्रॉन्स। इसका वोल्टेज बहुत हाई रहेगा, 1500 वोल्ट्स। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? फोकसिंग एनोड पे। फोकसिंग एनोड का काम क्या रहेगा? टू फोकस द इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और इसका वोल्टेज थोड़ा कम रहेगा, दैट इज़ 500 वोल्ट्स। After that, the electrons will reach to accelerating anode. It is also used to speed up the electrons velocity, और इसका वोल्टेज भी हाई रहेगा, 1500 वोल्ट्स। अब यहाँ से पास होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुँचेंगे? आफ्टर द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन द इलेक्ट्रॉन विल रीच टू द phosphorus screen and will show a waveform according to the value. So it is the working of CRT. तो यहाँ पर मैंने इसी को कंक्लूड किया हुआ है। एक बार इस स्लाइड को देख सकते हैं हम।
In the electron gun of the CRT, electrons are emitted, converted into a sharp beam, and focused upon the fluorescent screen. The electron beam consists of an indirectly heated cathode, a control grid, an accelerating electrode, and a focusing anode. The electrodes are connected to the base pins. जैसा कि यहाँ पे base pins लगी हुई है, यहाँ पर हमने electrodes को connect किया हुआ है. The cathode emitting the electron is surrounded by control grid with a fine hole at its center. Hole क्यों रहेगा यहाँ पे? To give the passage to the electrons. The accelerated electron beam passes through the fine hole. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि passing हो रही है electrons की, वो एक जो यहाँ पे passage दिया है वहीं से pass होंगे वो. The negative voltage at the control grid controls the flow of electrons in the electron beam, and consequently the brightness of the spot on the CRO screen is controlled. तो कंट्रोल ग्रिड क्या रहेगा? उसकी फ्लो को कंट्रोल करेगा या उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करेगा, और उसी से ब्राइटनेस भी कंट्रोल होगी. जो कि हमें वेव फॉर्म दिख रही है उसके ब्राइटनेस भी यहाँ से कंट्रोल होगी. सो इट इज़ द वर्किंग ऑफ CRT. अब CRT में एक और पार्ट है, दैट इज़ द फॉस्फोरस स्क्रीन. सो नेक्स्ट इज फ्लोरोसेंट स्क्रीन और द फॉस्फोर स्क्रीन. Phosphor is used as a screen material on the inner surface of a CRT because phosphor absorbs the energy of the incident electrons, and the spot of light is produced on the screen where the electron beam hits. The bombarding electrons striking the screen release secondary emission electrons. These electrons are collected or trapped by an aqueous solution of graphite called as aqueduct, which is connected to the second anode. आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्वाडक्ट कोटिंग है. ये कहाँ पे लगी हुई है? दिस इज़ द, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, दिस इज़ द एक्वाडक्ट कोटिंग. तो ये सेकेंड एनोड यानी कि एक्सेलेरेटिंग एनोड के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा, विच इज़ कनेक्टेड टू द सेकेंड एनोड. एक्वाडक्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. एक्वाडक्ट. These electrons are collected or trapped by an aqueous solution of a graphite called as aqueduct. जो electrons आएंगे वो कहाँ collect होंगे? इस aqueduct coating पर. So it is very important. Collection of the secondary electrons is necessary to keep the screen in a state of electrical equilibrium. The type of phosphor used determines the color of the light spot. The brightest available phosphor isotope is P31 that produces yellow-green light with relative luminescence of 99.99%. 99.99%. So it is the basic theory of fluorescent screen. यहाँ पे हम phosphor यूज़ करते हैं. aqueduct coating इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने के लिए यूज़ होती है, और उसके बाद जिस टाइप का फॉस्फोर यूज़ करेंगे उस हिसाब से वहाँ पे हमें कलर मिलेगा, यानी जो लाइट स्पॉट होगा उसका कलर चेंज होगा. नाउ नेक्स्ट इज डिफ्लेक्शन सिस्टम. Electrostatic deflection of an electron beam is used in a general purpose oscilloscope. The deflecting system consists of a pair of horizontal and vertical deflecting plates. जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे दो टाइप की प्लेट्स है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स. अब अभी हम इसको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें अलग से इसका एक पूरा टॉपिक है जिसमें कि हम पूरा डिफ्लेक्शन सिस्टम इसका डिस्कस करेंगे. सो for right now it's sufficient that we have to know that there are two types of deflection, vertical deflection and horizontal deflection. The next is time based generator. The CRO is used to display a waveform that varies as a function of time. If the waveform is to be accurately reproduced, the beam should have constant horizontal velocity, as the beam velocity is a function of deflecting voltage, so the deflecting voltage must increase linearly with time. अगर deflecting voltage change हो रहा है तो deflecting उसकी जो beam velocity होगी वो भी उसके हिसाब से change होगी accordingly. और इस टाइप के वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? रैंप वोल्टेज, जिसमें कि वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है. इफ़ द वोल्टेज डिक्रीजेज रैपिडली टू जीरो with the waveform repeatedly produced as shown in figure, we observe a pattern which is generally called as sawtooth waveform. जैसा कि डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर, this is the
टिपिकली सॉ टूथ वेव फॉर्म, जो कि हमें टाइम बेस्ड जनरेटर से मिलेगा और इसी को हम कहाँ अप्लाई करेंगे, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में. सो दिस इज अ वोल्टेज that decrease rapidly to zero with the waveform repeatedly produced. यहाँ पे देखो, यहाँ पर बार बार ये जीरो पे आ रहा है और बार बार वही का वही वेवफॉर्म रिपीटेडली मिल रहा है हमें. The time taken to return to its initial value is known as flyback और return time. कितनी देर में वो वापस से जीरो पे आ रहा है या उसकी इनिशियल वैल्यू पे आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द रिटर्न टाइम और द फ्लाईबैक टाइम. Time based generator is used to generate sawtooth voltage required to deflect the beam in horizontal section. In sawtooth waveform, the deflecting voltage increases slowly and linearly with respect to time and reduces to zero quickly. It means rise time is high and fall time is less. It is very important concept. The deflecting voltage increases slowly and linearly with respect to time, reduces to zero quickly. यानी कि इसका जो राइज टाइम होगा वो ज़्यादा होगा और फॉल टाइम जो होगा उसका कम होगा. राइज जल्दी होगा, राइज देर से होगा और फॉल जल्दी होगा. सो राइज टाइम इज़ हाई एंड फॉल टाइम इज़ लेस. तो इस टाइप की वेवफॉर्म को हम यूज़ करते हैं in the horizontal amplifier to produce the horizontal deflection. So the time based generator is used to produce the sawtooth waveform. और ये वेवफॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? To deflect the beam in horizontal section. So it's all about the simple basic introduction of block diagram of CRO. We will discuss in detail all the parts one by one in the coming lectures. Thank you.